ఓం శ్రీ ఓం. దయచేసి పాత్రల వద్ద అందరూ కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. ఎవరు నించోకండి. वॉलंटियर्स आदरणीय श्री पुरुषोत्तम जी राजिमवाले जी का हार्दिक स्वागत है। इस उगादि के इस पावन अवसर पर सामूहिक अग्निहोत्र में उनका स्वागत करते हैं हैदराबाद विश्व फाउंडेशन के कार्यकर्ता। 6:26 నిమిషాలకి మనకు సూర్యాస్త సమయం ఉంది ఇక్కడ. సో మనం 6:21 నిమిషాలకు వెలిగించుకుందాం. అప్పటి వరకు ఎవరు దయచేసి తమ పాత్రలు వెలిగించొద్దు. ఆ తర్వాత 2 వేద మంత్రాల ఉచ్చారణ ఉంటుంది. దానిలో 2 స్వాహాకారాలు ఉంటాయి. ఆ స్వాహ అన్నప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న బియ్యాన్ని 2 విభజించి ఒక్కో స్వాహ అప్పుడు ఒక్కొక్క భాగాన్ని మనం అగ్నిలోకి ఆహుతినివ్వాలి. దానిలోని మొదటి మంత్రం అగ్నయే స్వాహ అగ్నయే ఇదం నమమ. రెండవ మంత్రం ప్రజాపతయే స్వాహ ప్రజాపతయే ఇదం నమమ. అగ్నయే స్వాహ అన్నప్పుడు స్వాహ అన్న సమయంలో మనం ఒక భాగం బియ్యాన్ని అగ్నిలోకి ఆహుతినివ్వాలి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ప్రజాపతయే స్వాహ అన్నప్పుడు అప్పుడు ఇంకొక భాగాన్ని మన పాత్రలో ఉన్న బియ్యాన్ని అంతటిని కూడా అగ్నిలోకి ఆహుతినివ్వాలి. దీంతో మన ఈ అగ్నిహోత్ర కార్యక్రమం సంపన్నమవుతుంది. తర్వాత మన ఇష్టదైవాన్ని ఎవరినైనా ధ్యానించుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత మహారాజ్ గారి దివ్య సందేశం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా ఉన్నాయి. తదనంతరం మహాప్రసాదం కూడా ఉంది. అందరూ స్వీకరించి ఇక్కడ వీచేసిన భక్తులందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు అండి. మొట్టమొదటి మనం అనుకున్నట్టు నిశ్శబ్దాన్ని పాటిద్దాం. దాని తర్వాత సమయం ఏదైతే ఉందో 8 నిమిషాలు ఉంది. 6 నిమిషాల ముందు ప్రతి ఒక్క దగ్గర అగ్నోత్ర దగ్గర మ్యాచ్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి, తీసుకొని వెలిగించండి. ఇప్పుడు మీ దగ్గర కొన్ని వస్తువులు ఉంటాయి. అగ్నోత్ర దగ్గర ముట్టిగా వెలిగించాలంటే మ్యాచ్ బాక్సు అలాగే నెయ్యితో కలిపిన బియ్యం ఉంటాయి. ఒకవేళ లేని వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే కనుక చేయి రేస్ చేయండి, మీ దగ్గరికి అవి వచ్చేస్తాయి. ఒకసారి చూసుకోండి, మీ పాత్ర వద్ద నెయ్యి కలిపిన బియ్యం అక్షంతలు అలాగే మ్యాచ్ బాక్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఒకసారి రేస్ చేయండి. లేని వాళ్ళు రేస్ చేయండి, మీ దగ్గర తీసుకొస్తాం. ఇద్దరు కలిపి ఒక మ్యాచ్ బాక్స్ ఉంటుందండి, అది తీసుకోండి. బియ్యం మాత్రం ఒక్కొక్కరికి ఉంటాయి, ఒకసారి అది చూసుకోండి. కేవలం 7 నిమిషాలు మాత్రమే ఉంది. దయచేసి అందరూ వినండి ఒక్కసారి. ఇప్పుడు మనం అగ్నోత్ర ఏదైతే ఉందో ఆ అగ్నోత్ర ఆహుతి చేయడానికి 2 ఆహుతులు ఉంటాయి. 2 ఆహుతులు మనం వేసేటప్పుడు పలకాల్సిన మంత్రాలు 2 ఉన్నాయండి. ఆ 2 మంత్రాలు వేసేటప్పుడు పలకాల్సింది 2 మంత్రాలు. అవి ఒకసారి నేను చెప్తాను, దయచేసి అందరూ ప్రాక్టీస్ కోసం అనండి. ఇప్పుడు ఎటువంటి బియ్యం వేయవద్దు. ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ కోసం ఎప్పుడైతే వెలిగే జ్వాలలో మండే జ్వాలలో ఉందో సమయం వచ్చినప్పుడు ఆ సమయం స్వాహ అనేటప్పుడు ఒక భాగం బియ్యం తీసుకొని మండే జ్వాలలో వేసేటప్పుడు పలకాల్సిన మంత్రం నేను చెప్తాను, దాని తర్వాత మీరు చెప్పండి. మొదటి మంత్రం, మొదటి స్వాహ వేసే పలకాల్సిన మంత్రం అగ్నయే స్వాహ స్వాహ అగ్నయే ఇదం నమమ అగ్నయే ఇదం నమమ. ఎప్పుడైతే అగ్నయే స్వాహ అంటున్నామో నేతితో కలిపిన బియ్యం మొదటి భాగం ఒక భాగం తీసుకొని మండే జ్వాలలో వదిలేయాలి. రెండో భాగం పూర్తిగా పాత్రలో ఉంటుందో బియ్యం ఆ మొత్తం తీసుకొని మండే జ్వాలలో రెండో భాగం వేసేటప్పుడు పలకాల్సిన మంత్రం ప్రజాపతయే స్వాహ ప్రజాపతయే ఇదం నమమ ప్రజాపతయే ఇదం నమమ. ఎప్పుడైతే ప్రజాపతయే స్వాహ అంటున్నామో ఆ సమయానికి మొత్తం మీ దగ్గర ఉన్న బియ్యం తీసుకొని మండే జ్వాలలో వేయండి. ఎప్పుడైతే 2 స్వాహాలు వేసిన తర్వాత మనం నిశ్శబ్దంగా 2 నిమిషాలు ఉండండి. ఇప్పుడు మీ దగ్గర మ్యాచ్ బాక్స్ ఉందండి, ప్రతి మ్యాచ్ బాక్స్ తీసుకొని వెలిగించండి, పాత్రలు వెలిగించండి. సమయం ఆసనమైంది, కేవలం 5 నిమిషాలు మాత్రం ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు పాత్రను వెలిగించాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. सभी से अनुरोध है कि अपने पात्र कर्पूर से जला लीजिए और पात्र को अग्नि प्रज्वलित। अगले 5 मिनट में हमको अग्निहोत्र का करना है। जो भी कुर्सियों पे बैठे हैं, जो नीचे बैठ सकते हैं, वो आके अग्निहोत्र के पात्र के आगे बैठ जाइए। దయచేసి సైడ్లో కూర్చున్న వాళ్ళు మరొకసారి మనకి కింద కూర్చునే అవకాశం ఉంటే కనుక కింద కూర్చొని పాత్రలు వెలిగించండి. చాలా సువర్ణమైన అవకాశం. ఇటువంటి అవకాశం ఈరోజు ఉగాది సందర్భంగా మనం ఏదైతే అగ్నోత్ర సాయంత్రం చేస్తున్నామో అత్యధికంగా మంచి అవకాశం ఇది. దయచేసి అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు పాత్రలందరూ వెలిగించండి. అలాగే స్టేజ్ ముంగట ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ స్టేజ్ని కనిపించేటట్లు కొంచెం చూడండి జరా. ఏదైతే అగ్నోత్ర పాత్ర వెలిగించిన తర్వాత అగ్గిపుల్ల మాత్రం పాత్రలో వేయకండి, సైడ్ డబ్బా మీద పెట్టండి. దయచేసి అగ్గిపుల్ల అందులో వేయకూడదు, సైడ్కు పెట్టండి. అగ్గిపెట్టెలు లేకుంటే పక్క వాళ్ళని అడిగి తీసుకోండి. మీరు ప్లీజ్
మీరు వెలిగించుకుంటే పక్క వాళ్ళకి అగ్గిపెట్టె లేకుంటే మీరు దయచేసి వాళ్ళకు అగ్గిపెట్టి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. దయచేసి స్టేజ్కి ఎవరు అడ్డంగా నించోకండి. మనం అగ్ని వెలిగించాము, సాక్షాత్తు ఆ అగ్నిదేవుడు పరమేశ్వరుడు మీరు వెలిగించిన అగ్నిలోకి ప్రవేశించాడు. ప్రవేశించినప్పుడు మనం ఎంత నిశ్శబ్దంగా ఉండాలంటే సాక్షాత్తు భగవంతుని చూస్తూ మనం భగవంతుని ధ్యానంలో ఉండాలి. దయచేసి ఎవరు మాట్లాడకండి, సైలెన్స్గా ఉండండి, అగ్నిని చూస్తూ ఉండండి. నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. अगले 3 मिनट में या सूर्यास्त का समय होगा. सभी से विनती है कि चावल के 2 भाग करके पहले स्वाहाकार में 1 भाग और दूसरे स्वाहाकार में दूसरा भाग अग्नि में अर्पण करना है. కేవలం 2 నిమిషాలు ఉందండి. ఎప్పుడైతే 1 నిమిషం ఉందని అనౌన్స్మెంట్ చేస్తామో ఆ సమయాన ఏదైతే మనం బియ్యం కలిపి ఉన్న పాత్ర ఉందో అది లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో పట్టుకొని ఒక భాగం రైట్ హ్యాండ్తో తీసుకొని రెడీ ఉండండి. ఎప్పుడైతే మేము మంత్ర ఉచ్చారణ చేస్తామో దాని తర్వాత మీరు అప్పుడు స్వాహ ఇవ్వండి. ఇంకా 2 నిమిషాలు ఉందండి. ఎప్పుడైతే 1 మినిట్ అంటామో అప్పుడు ఆ బియ్యం కలిపిన పాత్రను లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో పట్టుకోండి, రైట్ హ్యాండ్ ఒక భాగం తీసుకోండి. దయచేసి ఎవరు అగ్గిపుల్లల్ని అగ్నిలోకి వేయకండి, పక్కన ఉన్న చెక్క ముక్క మీద పెట్టండి. कृपया कोई भी माचिस की तीली अग्नि में न डाले. ఎప్పుడైతే 1 మినిట్ అంటామో ధర్మ సైనికులు మొత్తం సైడ్కి వచ్చేయండి. ఎటువంటి మధ్యలో ఉండకూడదండి, ధర్మ సైనిక్స్ మధ్యలో ఉండకండి. అరే నేను నాకు వద్దు నాయన, నీకే చేస్తున్నా. వెలగదు, అప్పుడు వెలగాలంటే మనం గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఎయిర్ ఉంటేనే కదా. వన్ మినిట్. కేవలం బియ్యం కలిపిన పాత్రను లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో పట్టుకోండి, రైట్ హ్యాండ్తో ఒక భాగాన్ని తీసుకోండి. कृपया 2 भाग कर लीजिए जो भी चावल आपके हाथ में है. ఎప్పుడైతే మేము మంత్రం చెప్తామో మీ నోటితో కూడా మంత్రం పలికి స్వాహ వేయండి. స్వాహ అన్నప్పుడే బియ్యాన్ని అగ్నిలోకి ఆహుతి ఇవ్వాలి. 2 parts, 2 portions, correct. అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే ఇదం నమః ప్రజాపతయే స్వాహా ప్రజాపతయే ఇదం నమః. సైలెన్స్గా అందరు కళ్ళు మూసుకొని 2 మినిట్స్ ఉండండి.
सप्तश्लोकी धर्मादेश यदा सृष्टं जगत्सर्वं तदा लोकपितामह चतुर्वेद समायुक्तं शाश्वतं धर्ममादिशत् किं सत्कर्म किमाध्यात्मं निर्विज्ञातुमर्हति सर्वशास्त्रेषु ग्रन्थेषु प्रमाणं परमं श्रुति अस्पष्टं चरास्पष्टं तत्त्वज्ञानविवेचनम् अन्यत्र लभ्यते किन्तु प्रमाणं परमं श्रुति आस्य ग्रन्थेषु सर्वेषु श्रुति प्रामाण्यमेव च सर्वदा सारमादत्यानि च कल्याणहेतवे शुष्कवादरताः केचिन्नानादिस्ति वादिनाः सर्वे ते विलयं यान्ति मिथ्याकलहकारिणाः नास्तिका वेदनिन्दकाः पाखण्डा वेददूषकाः ये ते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचारी प्रवर्तकाः यज्ञदानतपकर्म स्वाध्याय निरतो भवेत् एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्म सनातनः एषादेशः एषोपदेशः एतत् अनुशासनम् एवम् अनुशासितव्यम् एवम् उपासितव्यम् यज्ञधर्मं चरामि दानधर्मं चरामि तपोधर्मं चरामि कर्मधर्मं चरामि स्वाध्यायधर्मं चरामि पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि पुनरपि दानधर्मं चरामि पुनरपि तपोधर्मं चरामि पुनरपि कर्मधर्मं चरामि पुनरपि स्वाध्यायधर्मं चरामि पुनः पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि पुनः पुनरपि दानधर्मं चरामि पुनः पुनरपि तपोधर्मं चरामि पुनः पुनरपि कर्मधर्मं चरामि पुनः पुनरपि स्वाध्यायधर्मं चरामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मसंगं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मसंगं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि సత్యధర్మసంఘం శరణం గచ్ఛామి. ఇప్పుడు గౌరవనీయులు శ్రీ పురుషోత్తం రాజింవాలే గారు తమ దివ్య సందేశాన్ని మనకు అందిస్తారు. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. उपस्थित सभी मेरे अग्निहोत्र परिवार के परिजनों को आज के इस नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. आज सुबह शिवपुरी के अति पावन प्रांगण में नववर्ष की शुरुआत पवित्र धर्मध्वज के आरोहण के पश्चात शुरू हुई. आज सुबह जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा था तब एक विचार मन में आया कि अगर हम पंचांग का वाचन करते हैं, नए वर्ष की शुरुआत आने वाले काल के पंचांग के साथ, उसके वाचन के साथ की जाती है और उस पंचांग में शुरुआती अर्थात संवत्सर का नाम होता है और ग्रह स्थिति और आदि उसका वर्णन होता है. लक्ष्य मेरा गया वो था सत्य विक्रम संवत 0082 और अत्यंत महत्वपूर्ण है ये घटिका हम सबके जीवन के लिए.
यूँ तो अनेक बार वर्ष बदलता है, वर्ष के साथ कैलेंडर बदलता है, जीवन वैसा का वैसा धारा का धारा रह जाता है। लेकिन ये जब कालगणना हम सोचते समझते हैं तो उसमें यह विशेष है कि अब 82 साल हो चुके हैं सतयुग के आरंभ के पश्चात। ये 82nd ईयर ऑफ द सतयुगा, इस प्रकार से हम उसकी गणना करते हैं। तो एक अत्यंत शक्तिशाली ऐसा ये विचार है, क्योंकि जब वर्ष बदलेगा, संवत्सर बदलेगा, दिन बदलेगा, काल बदलेगा, अगर जीवन नहीं बदलता है तो उस काल के गणना का कोई अर्थ नहीं बचेगा। पिछले 15,000 वर्ष मानव ने हर बार हर संवत्सर में इसी प्रकार से काल गणना होते हुए देखी है। और पिछले 5,000 वर्ष का ये अत्यंत अंधकारमय जो काल कलयुग का गुजरा है, उसका भी हमने अनुभव किया है। और पिछले 8 दशकों से एक युग प्रवर्तन का काल जो है, उसका भी अनुभव हम सब ने किया है। तो हम अत्यंत एक विलक्षण ऐसे काल के मंच पर खड़े हैं, जहां से हमको दोनों युगों के इस युग संधि का साक्षात्कार एक साथ हो रहा है। पीछे मुड़कर अगर हम देखें और आस पड़ोस के जीवन मान को अगर हम देखते हैं, तो कली के इस विकृत विचार को लेकर ग्रस्त समाज व्यवस्था को हम देखते हैं, जहाँ पे भेदभाव, तान तनाव, दुख, अनारोग्य, अस्वास्थ्य, द्वेष, मत्सर, लोभ, इनसे ग्रस्त मानवीय जीवन हम देखते हैं। और दूसरी ओर जब संवत्सर बदलता है और आज के इस पवित्र दिवस पर एक नए संवत्सर का आरंभ होता है, हमारे लिए तो एक नए युग का आरंभ हो चुका है। तो काल का मापन जब होता है तो हम संवत्सरों में गिनती करते नहीं, हम युगों में गिनती करते हैं। क्योंकि हर सुबह शाम जब अग्नि में हम आहुति अर्पण करते हैं, उतना दूर हम कली से जाकर सतयुग में समा जाते हैं। और कली के जितने भी विकृत विचार है, जितने भी विकृत अंश है, हमारे अणु रेणु में से निकाल कर उसका हम स्वाहा कर देते हैं। और उस सारे रिक्त स्थानों में हम अग्नि की ज्वाला, अग्नि की ऊर्जा समाकर एक प्रकाश युग में हमारा जीवन सम्मिलित कर देते हैं। जब संवत्सर बदलता है तो हमारा जीवन कितना अभूतपूर्व बदला है, इसका भी हमको ज्ञान होने की आवश्यकता है। पिछले 15,000 वर्षों का अगर मानवीय इतिहास अगर हम खोल के देखें, तो युद्ध, हिंसा, भय, अनारोग्य, अत्याचार, असमता, अन्याय, इसका एक श्रृंखला नजर आती है। और हमारे परम सद्गुरु कहते हैं कि हम ऐसे युग का आरंभ करेंगे जहां पे सर्वत्र केवल खुशियां ही खुशियां होंगी, हर घर में आनंद होगा, हर मुख पर हंसी होगी, हर हृदय में स्वास्थ्य होगा। ऐसे युग का आरंभ करेंगे, ऐसी एक श्रृंखला का आरंभ करेंगे जहां पे समता, न्याय, बंधुता, प्रेम, सद्भाव, ये समाज की रीत बन जाएगी। हर घर में, हर परिवार में आनंद होगा, आरोग्य होगा, संपन्नता होगी, समृद्धि होगी, घर बलशाली होगा, सामर्थ्यवान होगा, समाज सशक्त होगा, सक्षम होगा और देश सामर्थ्यवान बनेगा। आज के इस दिवस पर ऐसे जब संवत्सर बदलेंगे, अति तीव्रता से उस कामना की, उस जीवन उद्देश्य की व्याप्ति हमको सामने नजर आने लगती है। आज जब हम इतने बड़े विशाल अग्निहोत्र परिवार को देखते हैं तो समझते हैं कि आने वाला युग जो है वो कितना बलशाली, विशाल होने वाला है, कितना ओजस्वी होने वाला है, हर परिवार कितना सामर्थ्यवान बनने वाला है। और अति तीव्र गति से, अधिकाधिक मात्रा में कली के उस अति पुरातन अंधकार से निकलकर हर एक परिवार, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक कोई परिसर
एक एक कर कर इस प्रकाश युग में सम्मिलित हो रहा है। हमारे जितने भी यहाँ पे प्रचारक आज उपस्थित है, 2 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, इसी दिवस पर यह कार्यक्रम हुआ था, 3 इयर्स अगो मैं आया था इसी कार्यक्रम के लिए। तब की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। आज इस शहर में लगभग 50 से ज़्यादा प्रशिक्षित अग्निहोत्र प्रचारक है, जो हर दिन रात ये प्रयास करते हैं कि हर घर में अग्निहोत्र के माध्यम से सतयुग प्रज्वलित होवे। हम जब घर में किसी को अग्निहोत्र का दीक्षा देते हैं, अग्निहोत्र का प्रचार करते हैं, घर में अग्निहोत्र का जब पवित्र अग्नि प्रज्वलित होता है, तब क्या होता है, 15,000 वर्ष के बाद उस व्यक्ति को पहली बार अपने अस्तित्व के मूल स्वरूप का ज्ञान होता है। और उस दिव्य अग्नि के सामने जब वो परिवार बैठकर समंत्र उसमें आहुति अर्पण करता है, तो 5,000 वर्ष के इस कलयुग का अंत कर कर प्रथम एक बार सतयुग में, इस पवित्र युग में वो श्वास लेता है। और मैं हमेशा सुनता हूँ, मैंने हमेशा देखा है, आप सब मिलकर सुबह से शाम 12-12, 18-18 घंटा मेहनत कर कर प्रचार कर कर असंख्य आज परिवारों को इस नए युग में सम्मिलित कर रहे हो। तो युगादि का ये जो संवत्सर का बदल का काल है, हम सबके लिए वर्ष नहीं बदला है, काल बदला है, युग बदला है। अभूतपूर्व इस प्रकार से मानवीय मानस अंतःकरण बदला है। और अग्निहोत्र क्या है, उसका एक मशाल है, उसकी एक ज्वाला है। ये क्या दर्शाती है, परिवर्तन का ज्योति दिखाती है। किस परिवर्तन का हमको स्वीकार करना है, हमको द्वेष से दूर प्रेम की ओर जाना है, हमको अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, अस्वास्थ्य की ओर निकलकर स्वास्थ्य की ओर जाना है, दुख की से निकलकर सुख की जाना है, असमृद्धि से निकलकर समृद्धि की ओर जाना है। तो ये परिवर्तन जो आता है, वो युग परिवर्तन जो आता है, वो अग्निहोत्र के घर में प्रज्वलित करने से होता है। ये अग्नि क्या है, ये वो प्राचीन अग्नि है जिसने ऋषियों को भी दीक्षा दी, जिसने अवतारों को दीक्षा दी। आज वही पवित्र अग्नि हमारे घर में प्रज्वलित होकर हमारे परिवार को उत्थान की ओर ले जाएगा। अग्नि आज यहां हम ज्वाला प्रकट करते हैं, तो अग्नि को चाह कर भी मैं उल्टा नहीं कर सकता। आप प्रयत्न कर कर देखिए, पानी अगर मैं बोतल से लेता हूं, उल्टा करता हूं, तो पानी ऊपर से नीचे गिरता है। आप कितना भी प्रयास करो, अग्नि को ऊपर से नीचे नहीं ला सकते। अग्नि का स्वयं स्वभाव होता है ऊपर से और जाने का, नीचे से ऊपर की ओर जाने का। कलयुग का काल बीता, मतलब क्या बीता, हम अपने अस्तित्व को भूल गए। हम भूल गए कि हम ईश्वर अंश हैं। हम भूल गए कि हमारे में कितना प्रचंड सामर्थ्य है। अब जब जन्म लेते हैं, जिस क्षण हम कुछ सेकंड हमारा आयुमान होता है, उस क्षण में ही उस बालक के जीवन में, उस शरीर में सभी शक्तियां सिद्धियां विराजमान होती है। हम भूल गए कि हमें क्षमता क्या है। ये जो मन शरीर हमको मिला है, ये कितना सामर्थ्यवान ईश्वर ने बनाया है, इसका अज्ञान होना मतलब ही कलयुग है। और हम दीन हो गए, हम दुखी हो गए। हमने ये मान लिया कि जीवन संघर्ष का एक प्रतीक है, जीवन प्रकाश की एक यात्रा है। ये भूल जाना ही कलयुग है। और उसको याद दिलाते हैं, अग्निहोत्र में याद क्या दिलाते हैं, इदम न मम करते हैं हम। इदम न मम, किसका इदम न मम करना है, इस सीमित अस्तित्व का इदम न मम है कि मुझे ये अस्तित्व नहीं, ये मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, यही मेरी पहचान है। मैं ईश्वर अंश हूं, यही मेरी पहचान है। मैं इस जीवन में आया हूं आनंदी होने के लिए ही आया हूं, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं यहां पे दुखी होने के लिए आया ही नहीं हूं। मैं आनंद से, प्रेम से, सद्भाव से, अपनेपन से, स्वच्छंद से जीने के लिए आया हूं। सीमित, मर्यादित, संकुचित जीवन जीने के लिए आया ही नहीं हूं। यह फर्क जो है वो युग को परिवर्तित कर देगा। संवत्सर को बदलेगा तो साथ ही में युग को भी बदल देगा, जीवन के अस्तित्व को बदल देगा, अंतःकरण को बदल देगा। और जब अग्निहोत्र का हम प्रचार करते हैं, तब क्या करते हैं,
हाथ को पकड़कर उस व्यक्ति को, उस परिवार को अंधकार से प्रकाश में लाते हैं। इसलिए उसको समय लगता है। आप कभी देखिए, अगर आप बहुत दिन तक, बहुत समय तक आंख बंद करें और आपकी आंख में अगर सडनली अगर लाइट आ जावे तो कुछ क्षण आपको लगेंगे आपको आंख खोलने में, कुछ समय जाएगा कि उस लाइट को एडजस्ट करने में। वही फर्क है। आज समाज बहुत दीर्घ अंधकार के काल से गुजरा है, उसको अब सडनली अगर आप बोलोगे कि अग्निहोत्र का स्वीकार कर कर सतयुग में प्रवेश करे, तो वो शुरुआती हिचक है। वो आंख खोलने के लिए समय लगता है, उतना ही केवल हिचक है। उनमें हमें फर्क क्या है? हमने लाइट को एडजस्ट कर लिया है, हमने लाइट को एक्सेप्ट कर लिया, हमने सत्यता को एक्सेप्ट कर लिया है, हमने इस विचार को एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं ईश्वर अंश हूं और मेरे अस्तित्व में इतना सामर्थ्य है कि मैं अपना जीवन तो निर्माण करूंगा ही, परिवार का भी कल्याण करूंगा, साथ ही में समस्त मानव समाज का कल्याण भी करूंगा। इतना जन्मतः सामर्थ्य मुझ में है। मैं किसी के सामने याचक नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा तो देयक बनूंगा, मैं बनूंगा तो निर्माता बनूंगा, मैं समाज का कर्ता बनूंगा। ये भाव जो है, ये युग परिवर्तन का भाव है। ये 5000 साल पहले कोई विचार नहीं कर सकता था। 100 साल पहले अगर किसी आपको यहां बैठ के कोई बोलता कि इस प्रकार से विचार करे तो समाज आप पे हंस देता शायद। लेकिन ये काल का महिमा है। जितना युग बदलेगा, जितने संवत्सर बदलेंगे, जितने युगादि हम यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, उतना तीव्र गति से सतयुग की यहाँ पे स्थापना होगी, उतनी तीव्र गति से अधिकाधिक लोग इस प्रकाश युग में सम्मिलित होंगे, उतने घरों में अग्निहोत्र प्रज्वलित होगा और एक विशाल मानव समाज प्रकाश की ओर, आनंद की ओर, उत्कर्ष की ओर जाएगा। अग्निहोत्र करने से क्या प्राप्त होता है? अग्निहोत्र करने से आपको इस सृष्टि की चाबी मिल जाती है। परम सद्गुरु जी ने कहा है, आप हम सब ने दिव्य संदेश में पढ़ा है, परम सद्गुरु कहते हैं कि आप तो जन्मे ही मुक्त हो, आप तो जन्म से ही मुक्त हो, आप किसी कर्म से बद्ध नहीं हो। आपको बुलाया गया है ताकि आप हमारे कार्य में सम्मिलित हो सको। और वो आपसे पूछते हैं, आपसे आग्रह नहीं करते, आपको आदेश नहीं करते, आपसे पूछते हैं कि आप तो मुक्त हो, आप जिस क्षण चाहो मोक्ष मांग लो, हमारे पास रखा है, दे देंगे, आप ही का है, आपका हक है उस पर। लेकिन क्या आप हमारे कोई लगते नहीं? क्या आपका हमारा कोई नाता नहीं? क्या आपका हमको कोई ऋणानुबंध नहीं? अगर है, अगर प्रेम का नाता है, परिवार का नाता है, तो क्या मेरा काम आपका काम नहीं? अगर आप चाहो स्वार्थी बनो, मोक्ष प्राप्त करो और अनंत में विलीन हो जाओ। लेकिन अगर आप मेरे अपने हो, अगर आप मुझसे कुछ प्रेम करते हो, अगर ईश्वर से प्रेम करते हो, धर्म से प्रेम करते हो, समाज से प्रेम करते हो, तो अधिकाधिक लोगों तक अग्निहोत्र ले जाने के कार्य में जुड़ जाओ। अब जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तब उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता है कि एक अग्निहोत्र आचरण करता परिवार में जन्म होना या अपने घर में अग्निहोत्र शुरू होना, मतलब हम सब जो हैं इस कालचक्र वशम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम काल पाश विनिर्मुक्तो नर रूप सदा शिवा। जितने भी अग्निहोत्र आचरण करता परिवार है वो नर रूप सदाशिव है, क्योंकि वो जन्मे ही मुक्त है। इसी के कारण इदम न मम कह सकते हैं। अब उस भाव की स्थिति को प्राप्त करना यही शेष बचा है। अग्निहोत्र क्या है? उस भाव की चाबी है। आप चाबी खोलो, जो सृष्टि में जो चाहे मांग लो। अग्निहोत्र सर्वदाता है। अग्निहोत्र क्या देगा? संपूर्ण सृष्टि की जितनी भी चीजें हैं, जो भी आप चाहो मांग लो। आप समृद्धि मांगते हैं, मांग लो। आप आनंद चाहते हैं, मांग लो। आप कुटुंब का कल्याण चाहते हैं, जो भी आप चाहो। अगर आप अग्निहोत्री हो या आपके घर में अग्निहोत्र अग्नि प्रज्वलित होता होगा, मतलब आप आशीर्वचित हो, मतलब आप पुण्य पावन भाग्यवान आत्मा हो।
और आप अग्नि के सम्मुख बैठकर जो भी इच्छा हो वो मांग लो, अग्नि आपको फलद्रूप कर देगा, उसको मैनिफेस्ट कर देगा। अग्निहोत्र क्या है? इस सृष्टि की खोलने की एक की है, और वो आपको देवे, ये ईश्वर की इच्छा है। तो परम सद्गुरु कहते हैं मुझे ईश्वर की आज्ञा है कि आप तक अग्निहोत्र पहुंचाना है। अब अगर आप चाहो तो इस पवित्र अग्नि से भौतिक जो चाहे मांग लो, लेकिन अगर मुझ पर प्रेम है, अगर मुझको गुरुपद देते हैं, अगर मुझ पर श्रद्धा आपकी है, तो इतना ही मांगो कि समस्त भूमंडल पर सनातन धर्म की पुनः प्रस्थापित हो जाए। मांगना ही है तो वो मांगो, और अग्नि उसको भी फलद्रूप कर देगा। अगर सुबह शाम अग्नि के सम्मुख बैठकर आप इदम नमः कहकर इसमें आहुतियां अर्पण करते होंगे, तो अगर आप शुद्ध अंतःकरण से कुछ मांगोगे, अग्नि वो चुटकी में फलद्रूप कर देगा, क्योंकि आपका तो देयक है ईश्वर। आप अग्निहोत्री हो मतलब आपका तो देयक है ईश्वर, आप जो मांगोगे वो दे देगा। लेकिन परम सद्गुरु कहते हैं कि स्वार्थ से न मांगो, क्योंकि ये सतयुग है, यहां परमार्थ का मांगोगे तो ही फलद्रूप होगा। अगर स्वार्थी बनोगे तो स्खलित हो जाओगे। अगर परमार्थ के लिए मांगोगे, विश्व का कल्याण मांगोगे, तो प्रत्यक्ष देवत्व को प्राप्त कर जाओगे। फिर मांगने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो फिर देने के लिए आपका सामर्थ्य बनेगा। तो हमको समझ में नहीं आता है कि युग बदलता है। युगादि का ये जो पर्व होता है वो युगांत का काल है और अग्निहोत्र के आरंभ का काल है। मतलब क्या है? सृष्टि के परिवर्तन का काल है, नूतनीकरण का काल है। और हम सब से इतने विशाल इस अग्निहोत्र परिवार से अपेक्षा क्या है कि यावत चंद्र दिवाकर हो, जब तक सूरज चांद आकाश में होगा, हर घर में अग्निहोत्र प्रज्वलित होगा, इसका ख्याल रखें। हर व्यक्ति आनंदी होगा, इस पर आप आग्रही रहें, और विश्व भर में सुख समृद्धि का साम्राज्य प्रस्थापित हो, इस एक ही कार्य में जुड़ जाए। कलयुग का काल था जब स्वार्थ से करते थे तो आपका कल्याण हो भी सकता था। आज भी हम कलयुग के नियमों से जीते हैं। गुड गाइज फिनिश लास्ट, टेढ़ी उंगली से घी निकलता है। ये कलयुग में ठीक था, आज उंगली टेढ़ी करोगे तो उंगली अटक जाएगी अंदर। अब वो समय गया। अब जो परमार्थ से सोचेगा, जो इदम न मम का सोचेगा, जो लोक कल्याण का सोचेगा, उसी का कल्याण होगा, उसी को यश मिलेगा, उसी को समृद्धि मिलेगी, उसी को शाश्वत आनंद मिलेगा। और ये सृष्टि का नियम है, ईश्वर का नियम है, परम सद्गुरु का नियम है, यही इस पवित्र अग्नि का आदेश है। तो युगादि के इस पर्व पर हम सब ने मिलकर पवित्र अग्नि में आहुति अर्पण की। हम में से कई लोग तो कुछ दशकों से अग्निहोत्र कर रहे हैं, कुछ वर्षों से कर रहे होंगे, कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से कर रहे होंगे। आपके घर में अग्नि प्रज्वलित है मतलब आपका परिवार का कल्याण तो गारंटीड है। वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, कोई नारियल जाके कहीं फोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार का, आपके बीवी बच्चों का, सबका कल्याण गारंटीड है अगर आपके घर में अग्निहोत्र है तो। लेकिन अग्नि आपसे पूछता है, सुबह शाम पूछता है कि आहुतियां देकर इदम न मम बोल तो रहे हो, आपको क्या चाहिए? उस क्षण पर स्वार्थ के बजाय परमार्थ मांगोगे तो यश की सीढ़ी चढ़ जाओगे, इसी जीवन में देवत्व को प्राप्त कर जाओगे। तो अग्निहोत्र के इस अति प्राचीन उपासना के माध्यम से मिलना क्या है? साक्षात ईश्वरत्व का अनुभव करना है। कई लोग बोलते हैं कि ये कोई व्यक्ति है, किसी बड़े पद पर बैठा है, बहुत पावरफुल आदमी है, बोलते हैं ना हम, ये उस पोजीशन में बैठा है, कोई कुछ है, पावरफुल आदमी है। अरे आप तो प्रत्यक्ष ईश्वर बन सकते हो भाई, उससे ज्यादा पावरफुल क्या है? आप अग्निहोत्र करते हो तो एक वन स्टेप अवे फ्रॉम डिविनिटी हो।
वन स्टेप अवे फ्रॉम ईश्वर हो, तो आपसे पावरफुल कौन है? इसका विचार हमको करने की आवश्यकता है। और अग्निहोत्री होना, अग्निहोत्री प्रचारक होना, मतलब इस सृष्टि के नूतनीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होना, यह है, इस बात को सोचना चाहिए। तो आज के इस युग अंत और नए युग के प्रारंभ में यह परिवर्तन अपने हृदय में होवे कि परमार्थ के लिए जीवन जिएंगे, विश्व कल्याण के लिए जीवन जिएंगे, गुरु सेवा के लिए जीवन जिएंगे और अपने ही जीवन में समस्त मानव कल्याण का कल्याण करेंगे। इस भावना से हमको जीना है। कितने लोग रेडी हैं? भाई शो ऑफ हैंड्स, कितने लोग रेडी हैं? कितने लोगों को लगता है कि हमको इसी जीवन में पूर्णानंद चाहिए, इसी जीवन में ईश्वरत्व चाहिए, हमारे ही जीवन में विश्व का कल्याण हो जावे, इस प्रकार से हमको कार्य करना है। कौन कौन रेडी है? कौन है जो स्वार्थ का त्याग कर कर, स्वार्थ का आहुति कर कर परमार्थ के लिए जीवन जिएगा? सब रेडी है? तो अगली बारी जब शिवपुरी में टीचर ट्रेनिंग होगा तो मुझे इतने सारे लोग चाहिए। अन्ना, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सब प्रचारक होंगे। अग्निहोत्र आचरण करता तो सब हैं, राजू काका, अग्निहोत्र आचरण करता सब है, अब सब प्रचारक भी बनेंगे, छोटे बच्चे भी हैं, ये भी बनेंगे। और देखते देखते पूरे विश्व में आनंद फैला देंगे, है ना? तो आज के इस दिवस गुरु चरणों के सम्मुख बैठकर इतने इस पवित्र वातावरण में, इतना प्रसन्न वातावरण है, कितना एक ऊर्जा से भरा हुआ ये वातावरण है, और इस वातावरण में हम सब बैठकर अग्नि का प्रज्वलन कर कर उसमें समंद्रक आहुतियाँ अर्पण आज हमने की है। ये एक झलक है, एक स्लाइस ऑफ हेवन, स्वर्ग का अनुभव। इससे पवित्र स्वर्ग क्या होगा कि हमारा परिवार साथ में है, सब साथ में बैठे हैं, हंस खेल रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, अग्नि के सम्मुख बैठ कर आहुतियाँ अर्पण करेंगे, गुरु दर्शन लेंगे, प्रसाद का ग्रहण करेंगे। इससे ज़्यादा और स्वर्ग का अनुभव क्या होगा? यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। इस भाव को अपने मन में समा लीजिए, इस दिवस को याद रखिए और आने वाले संवत्सर में इस स्वर्ग को अधिकाधिक लोगों तक ले जाने के लिए हम कटिबद्ध होंगे। और मेरा जितना भी यहाँ पे हमारे बंधु भगिनी हैं जो भी प्रचार करते हैं, गांव-गांव जाकर, मैंने सुना है कभी सुबह 3 बजे निकल कर या इस तरह से जाकर भी काम करते हैं। तो आप सभी की प्रेरणा से अधिक लोग अपने अपने भागों में भी ये काम शुरू करें, ऐसी गुरुचरणों में हम प्रार्थना करते हैं। और पुनश्च एक बार आप सबको आने वाले नववर्ष के लिए, इस आने वाले युग का आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार। మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బ్యాక్ టు రూట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.